हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप raises वाटर टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर थ्रू ए डिलीवरी पाइप 35 मीटर लेंथ एंड 140 इन डायमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिलीवरी हेड दे दिया है यहाँ पर 20 मीटर, डिलीवरी लेंथ दिया 35 मीटर एंड जो डाया दे दिया है पाइप का वो 140 दे रखा है। द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, सो बोर दे दिया है, डाया ऑफ द पिस्टन दिया है तो 250 एंड स्ट्रोक लेंथ इक्वल टू 400 रिस्पेक्टिवली। कैविटेशन अकर्स एट 2.5 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट, इट मीन्स सेपरेशन। सो सेपरेशन हेड है फ्रेंड्स, यहाँ पे दे दिया है सेपरेशन हेड 2.5 मीटर दे दिया है इन एब्सोल्यूट। फाइंड द स्पीड एट विच द पंप can run without separation on delivery side if the pipe rises first vertically and then runs horizontally. Will there be any change in the maximum speed if the pipe first runs horizontally and then rises vertically? So friends, ये वो कह रहा है कि first it is rising vertically and then going horizontally, so क्या इफेक्ट आएगा, and then second case, if first going horizontally and then going vertically, then what changes will occur? Okay friends, now here data has given here single acting reciprocating pump we are talking about. Delivery head 20 meter, delivery pipe length is equal to 35 meter, dia is equal to 0.14 meter, dia of the pipe, and dia of the piston is equal to 0.25 meter, stroke length is equal to 0.4 meter, and suppression pressure head, because due to suppression cavitation will occur, so suppression pressure head 2.5 meter absolute. Okay friends, now we know that friends atmospheric pressure head equal to 10.3 meter. So acceleration head due to acceleration head or pressure head due to acceleration in delivery side HAD equal to होता है LD by G A by AD R ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। ओके फ्रेंड्स, सो मैक्सिमम केस में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 पे cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, LD by G A by AD R ओमेगा स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम HAD की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन हेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। LD की वैल्यू 35 मीटर है, लेंथ ऑफ द पाइप 35 मीटर डिवाइड बाई 9.81 into pi by 4, दिस इज द डाया ऑफ द पिस्टन, दिस इज द डाया ऑफ द पाइप। सो यहाँ से हमें एरिया का रेशियो मिल जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रैंक रेडियस आर इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ बाई 2, स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू 0.4 मीटर एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, हमें एक रिलेशन मिल जाएगा HAD इक्वल टू 2.275 into omega square, unit is meter. Now friends, first case क्या है, first case में the pipe rises first vertically and then horizontally. Friends, this is the reciprocating pump, this is the cylinder, piston rod, connecting rod, crankshaft here, and here this is the suction pipe, this is delivery pipe, suction valve, delivery valve. Okay friends, now the case is first it is going vertically and then horizontally. So in this case फ्रेंड्स, हम प्रेशर फाइंड करेंगे। प्रेशर एट बी कितना होगा, प्रेशर एट बी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिस इज द इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉन बिटवीन प्रेशर हेड एंड स्ट्रोक लेंथ। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रोक पॉइंट, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द सक्शन, दिस इज द एंड ऑफ द सक्शन हियर, and this is the start of the delivery and this is the end of the delivery. This case is the ideal and this case due to acceleration. Okay friends, now here separation will occur at the end of the delivery stroke. This is the end of the delivery stroke and this line due to the acceleration in the pipe. Okay friends, this is the delivery head, this is the acceleration head or pressure head due to acceleration at the start point, and here deceleration, here it is deaccelerated,
So due to deceleration the value will come, this HAD value will come negative. Okay friends, so ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस आ जाएगा निगेटिव फॉर्म में. दैट्स वाई इट विल, ये वैल्यू जो है वो घट जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस पॉइंट शो द एट द एंड ऑफ द प्रेशर, दिस D dash पॉइंट शो एट द एंड ऑफ द प्रेशर. इट मीन्स फ्रेंड्स, जब पिस्टन हमारा इस पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट B पे आएगा, दिस पॉइंट पे आएगा, तो जो प्रेशर होगा इट विल शोन बाय दिस D पॉइंट, सॉरी D dash पॉइंट, दिस D dash पॉइंट शो द प्रेशर एट B. ओके फ्रेंड्स, this D dash point show the pressure head available at point B. It means this length, this is the pressure head available at the point B. This is the pressure head available at the point B. Here in this friends, this indicator diagram, this line show atmospheric pressure line. Okay friends, and this line equal to this line. This is the delivery head, and this is the acceleration head. Okay friends, so ये वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, md dash या d dash m shows प्रेशर एट पॉइंट B. प्रेशर एट इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा यह शो करेगा बाय दिस d dash m. इट विल इक्वल टू द this atmospheric pressure m into me so the atmospheric pressure head plus this DE is the delivery head, DE is the delivery head minus this pressure head due to acceleration. Okay friends, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ME प्लस ED माइनस DD डैश, ME प्लस ED माइनस DD डैश. सो दिस इज HATM प्लस HD माइनस HAD. दिस शो द प्रेशर एट पॉइंट B. ओके फ्रेंड्स, दिस शोज द पॉइंट एट प्रेशर एट पॉइंट B. नाउ फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइंड एट पॉइंट C बिकॉज हियर द separation occur at this point only, at point C, because here it going vertically and then horizontally, so that minimum pressure available at point C only. So we have to find the pressure at point C. So point C पे pressure कितना होगा friends, point C पे pressure कितना होगा, this total pressure minus this head, this total pressure head here at B minus this head, this 20 meter, then pressure head available at point C. It means फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस HAD डिलीवरी हेड जो है हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट C आ जाएगा. सो प्रेशर एट पॉइंट C कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट C हम क्या करेंगे, दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट B माइनस दिस इज द डिलीवरी हेड. सो HATM प्लस HD माइनस HAD माइनस दिस इज द डिलीवरी हेड. दिस फ्रेंड्स प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. सो प्रेशर एट पॉइंट C कितना हो जाएगा, HATM माइनस HAD. इट मीन्स एट प्रेशर एट पॉइंट C कितना हो जाएगा, पॉइंट C एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड माइनस एक्सेलरेशन हेड. सो दिस विल इक्वल टू द सेपरेशन बिकॉज यही मिनिमम प्रेशर होगा जहाँ पर हमें सेपरेशन स्टार्ट होगा. तो सेपरेशन प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा, सेपरेशन प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा HATM माइनस HAD. सो सेपरेशन प्रेशर की वैल्यू है 2.5 मीटर. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट B, दिस इज द, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिलीवरी हेड हो जाएगा, जिसे माइनस करेंगे तो दिस वैल्यू विल शो द प्रेशर एट पॉइंट C, एंड दिस इज द सेपरेशन हेड, दिस इज द सेपरेशन हेड इक्वल टू 2.5 H separation equal to 2.5 मीटर एब्सोल्यूट, बिकॉज हम यहाँ से हम ले रहे हैं दिस वैल्यू विल शो एब्सोल्यूट वैल्यू. नाउ फ्रेंड्स, वी नो डैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो 10.3 है एंड HAD की वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं तो 2.275 ओमेगा स्क्वायर आया है. सो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे
तो वैल्यू जो है ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1.85 एंड जब हम स्पीड निकालेंगे तो 17.681 RPM इट विल कम। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड व्हेन फर्स्ट इट विल गो वर्टिकली एंड देन हॉरिजेंटली। सो इस केस में जो मिनिमम प्रेशर हेड होगा या सप्रेशन पॉइंट होगा वह पॉइंट सी पर होगा। ओके फ्रेंड्स, एंड इन दिस केस में जो मैक्सिमम हमारा स्पीड आएगा वह 17.681 RPM होगा। नाउ फ्रेंड्स, द सेकेंड केस इज दैट, सेकेंड केस में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, द पाइप रन फर्स्ट हॉरिजेंटली एंड देन राइजेज वर्टिकली। फ्रेंड्स, दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप। हम मानते हैं कि ये जो पाइप है वह नियर बाय द सिलेंडर के पास से जा रहा है। फर्स्ट इट इज हॉरिजेंटली देन वर्टिकली। सो फ्रेंड्स, जो प्रेशर जो है, दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट, और सी पॉइंट पर जो है हमारा मिनिमम प्रेशर हेड होगा। सो यहाँ पर ही सप्रेशन के चांसेस रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो प्रेशर एट पॉइंट बी पर होगा इन द हॉरिजेंटल केस, सेम प्रेशर जो है वो पॉइंट सी पर होगा। नाउ हियर वी नो दैट प्रेशर हेड एट पॉइंट सी इक्वल टू प्रेशर हेड एट पॉइंट बी, एंड प्रेशर हेड एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेशर हेड एट पॉइंट बी कितना होगा फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ से देखें, दिस इज द इंडिकेटर डायग्राम, दिस इज द प्रेशर हेड एंड स्ट्रोक लेंथ। यहाँ से फ्रेंड्स क्या होगा, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन एंड दिस इज द डिलीवरी हेड, दिस इज द एक्सेलरेशन हेड। फ्रेंड्स, ये जो है जो इंड पॉइंट है एट द प्रेशर हेड एट द इंड ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक, प्रेशर हेड, दिस इज डिलीवरी स्ट्रोक, सो दिस इज द इंड ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक। सो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, एंड यहाँ पर जो सेपरेशन चांसेस रहेगा फ्रेंड्स, तो दिस वैल्यू इज द सेपरेशन हेड 2.5 मीटर एब्सोल्यूट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट से हमें जो प्रेशर बी पे कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड प्लस एच डी माइनस एच ए डी इक्वल टू प्रेशर एट सी। तो सी पे जो प्रेशर होगा यही प्रेशर हेड ड्यू टू सेपरेशन होगा। सो यहाँ से सेपरेशन हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ए टी एम प्लस एच डी माइनस एच ए डी। एच सेपरेशन की वैल्यू हम जानते हैं 2.5 मीटर, एच ए टी एम की वैल्यू होती है 10.3 मीटर, एच डी की वैल्यू है 20 एंड एच ए डी की वैल्यू है 2.275 ओमेगा स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, हम एक यहाँ पर देते हैं, दिस इज द ओमेगा 1 स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू जो है डिफरेंट आएगी। सो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम ओमेगा 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ओमेगा 1 की वैल्यू आ रही है 3.495 रेड पर सेकेंड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो। सो यहाँ से स्पीड n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू 60/2 पाई, सो 33.375 RPM इट विल कम। सो व्हेन सेकेंड केस में क्या है कि जब प्रेशर जो है हॉरिजेंटल है, जब लाइन हॉरिजेंटल है एंड देन वर्टिकल जा रहा है, इस केस में जो है फर्स्ट हॉरिजेंटल देन वर्टिकल, इस केस में जो स्पीड आएगा मैक्सिमम स्पीड वो 33.375 RPM होगा। एंड जब जो है पाइप वर्टिकली जा रहा था, वर्टिकल देन हॉरिजेंटल जा रहा था, तो इस केस में जो मैक्सिमम स्पीड था वो 17.68 RPM था। सो फ्रेंड्स, चेंज इन स्पीड कितना आ जाएगा, चेंज इन स्पीड, सो चेंज इन मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, n1 माइनस n, सो 33.374 माइनस 17.68, सो यहाँ से जो है 15.694 RPM का चेंज होगा। सो द चेंज इन मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, 15.694 RPM। ओके फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।